to my channel Insanely Sane. This is Anushka here, and today with a very heavy heart I would like to start the video. As you would have seen, the topic of the video is rapes in India. For the past few years and the past few months, I've seen so many rape cases happen that it has made my heart so heavy. It took me 2-3 days to actually figure out how I'm gonna talk about this to everybody, because looking at those cases and looking at the condition of those girls have just terrified me being a girl. I am personally terrified because now I am terrified to get out of the house at night. My mom personally is terrified to send me out of the house at any time of the day. So let's begin with this very terrifying topic. I would say this whole topic is terrifying. I want to talk about what leads for rapes to happen in India. What is happening? Where is Indian constitution going wrong? Where is Indian education going wrong? Where, as parents in India, things are going wrong? I want to talk about it. My mom, when I started the video, before I started it, actually, my mom actually said, do you want to do this? Because this is going to create such a huge problem. This is a topic that is so controversial. Do you really want to talk about this? Do you really want to take all the trouble that's going to come with the video? So I said, yes, why not? I am a girl and I deserve to talk about what's happening in India. Because me as a girl, same thing could have happened with me. Who knows? I cannot get out of the house at night because my mom is too scared. What if something happens to you? Whenever I get out of the house, my mom is giving me a knife, saying if something happens, try and fight the person. But what if they are 5'10"? How am I supposed to save myself? So I want to talk about each and every aspect what's happening in India. So let's begin with the video with a very heavy heart, might I add. As I am a very emotional person, it took me a few days to come to the point where okay, fine, I am fine now I can speak about the topic. So let's begin. जैसे आप सब जानते हो, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां औरत को देवी का रूप दिया जाता है। फिर क्यों वही देवी को इतने सारे कष्ट दिए जाते? क्यों उसी देवी का अपमान किया जाता है? क्यों उसी देवी के साथ बलात्कार किया जाता है? मुझे ये जानना है। अगर आप देश में देवी का रूप एक औरत को देते हो तो वही औरत को उस देश में बहुत सेफ फील करना चाहिए। क्यों मैं या कोई और औरत देश में सेफ क्यों नहीं फील करती? मुझे ये जानना है। मुझे ये जानना है उस हर आदमी से कि क्यों कोई औरत इस देश में सेफ क्यों नहीं फील करती? क्यों ऐसा होता है कि एक औरत रात के 2 बजे बिना ये चिंता किए कि कुछ मेरे साथ गलत हो जाएगा, क्यों वो घर के बाहर नहीं निकल पाती? क्यों एक लड़की को ये बोला जाता है कि आप ऊपर से नीचे सारे कपड़े पहन के जाओ वरना आपके साथ कुछ गलत हो सकता है? क्यों एक लड़की के पास ये फ्रीडम नहीं है कि जो चाहे वो पहन सके? क्यों हर लड़की को क्रिटिसाइज किया जाता है उसके ड्रेसिंग सेंस पे? क्यों एक लड़की सेफ नहीं फील करती कहीं भी जाने में? जब एक देश एक औरत को देवी का रूप मानता है तो क्यों उस देश में कोई भी औरत सेफ नहीं है? मुझे ये जानना है। मुझे ये जानना है उस हर आदमी से जो ये मानता है कि औरत देवी है, तो क्यों वो औरत इस देश में सेफ क्यों नहीं फील करती? इज ऑल आई वांट टू नो। एज सिंपल एज दैट। ये सब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? एजुकेशन, जो हमारे देश में बहुत लैग करती है। हमारे देश में एजुकेशन की रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। हमारे देश में रूरल एरियाज़ में ज़्यादा एजुकेशन को महत्व नहीं दिया जाता है, जिसके वजह से भी बहुत रेप्स होते हैं। तो अगर हम एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दे, कहीं ना कहीं थोड़ा तो बदलाव आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर एक इंसान एजुकेटेड है तो उसको पता है कंसेंट का मतलब। कंसेंट क्या होता है? अगर आपको एक लड़की
नो बोलती है, इफ यू आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग सेक्सुअल विथ हर, इफ शी सेज नो, उसका मतलब नो होता है। और एक एजुकेटेड पर्सन को उसका मतलब पता होता है, और जब एक अनएजुकेटेड पर्सन होता है उसको कंसेंट का मतलब नहीं पता रहता है। तो एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल ऑफ दिस। सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन, जो भी जहाँ भी ये देख रहा है, टू प्रमोट एजुकेशन, ट्राई एंड गिव एजुकेशन टू एवरीबडी। सेक्सुअल एजुकेशन इज टू बी गिवन इन स्कूल्स, बिकॉज बच्चों को हर जगह से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हमें लगता है कि बच्चों को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन हम गलत है। सारे बच्चों को इंटरनेट एक ऐसा नॉलेज का सागर है जहाँ सब कुछ मिलता है, सारी तरह की इंफॉर्मेशंस मिलती है। तो अगर हम स्कूल्स में सही तरह की सेक्सुअल एजुकेशन दे, तो बच्चों का डायरेक्शन भी सही होगा और उन्हें सही रास्ता मिलेगा, सही एजुकेशन मिलेगा, सही महत्व पता चलेगा, सब कुछ होगा। अगर स्कूल्स और अगर एजुकेशन में सब बिलीव करने लगे, तो आई डोंट थिंक ज़्यादा रेप्स होंगी। बिकॉज अगर एक इंसान एजुकेटेड है, वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करेगा। दैट इज ऑल आई एम सेइंग। एजुकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। I would like I would in fact request each and every school to start giving importance to things like sexual education, because kids these days are not as foolish as we were. They know things. Internet gives them everything. So उनसे छुपा के कोई फायदा है नहीं। तो इट्स बेटर कि आप सामने से उनको वो एजुकेशन दे दो जो सही हो, जो सही मायने में सही हो, ताकि उनका ध्यान इधर उधर ना भटके। एज सिंपल एज दैट। सो जो सेकंड टॉपिक है इज दैट पेरेंट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी चाइल्ड्स लाइफ। अगर एक पेरेंट अपने बच्चों को गलत हरकतों पे उनका सपोर्ट करता है, तो आगे जाके बच्चा वही हरकत करता है। मैंने बहुत बार पर्सनली भी देखा है और बहुत बार सुना भी है कि खुद माएँ अपने बेटों की गलतियों को ऐसे पर्दा कर देती है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर एक माँ अपने बेटे के कान खींच के उसको थप्पड़ लगा के बोले कि तुम लड़कियों की रिस्पेक्ट करोगे, तुम औरतों की रिस्पेक्ट करोगे, यू विल नॉट डिसरिस्पेक्ट देम, किस लड़के की ये मजाल होगी कि वो जाके किसी और औरत को डिसरिस्पेक्ट करेगा? मुझे ये नहीं समझ में आता। गलती होती है घर पे मम्मियाँ अपने बेटों को नहीं संभालती है, तो ये आगे जाके यही सब करते। जो माँ अपने बेटे के कान पकड़ के थप्पड़ लगा के उसको बोलेगी, बचपन से उसको ये सिखाएगी कि आप लड़कियों की रिस्पेक्ट करोगे, वो आपकी माँ के जैसे है, तो आपको क्या लगता है कौन लड़का किस लड़की की डिसरिस्पेक्ट करेगा? तो घर पे जब खोट है ऐसे, तो क्या ही होगा? रूरल एरियाज में ये बोला जाता है कि लड़के लड़कियों से सुपीरियर है। कैसे? तो अगर ये मेंटालिटी लड़कों में होगी तो रेप्स ही होंगे ना। अगर हर माँ अपने बेटे को एक चमाट लगा के बोलेगी कि हाँ तुम लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, तो किस लड़के की मजाल होगी वो करेगा? तो जब तक घर पे आप अपने बेटों को ये नहीं सिखा देते कि हाँ तुम लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, उनकी तुम रक्षा करोगे, तब लड़के भी सुधर जाएंगे और देश भी सुधर जाएगा। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। एज सिंपल एज दैट। सो मूविंग ऑन, ये सब के बारे में सोचने के बाद, देखने के बाद, मैंने सोचा रेप्स की प्रिवेंशन कैसे करेंगे, ये मैंने सोचा। तो आई वेंट थ्रू गूगल फॉर दिस। तो गूगल ने दिखाया अच्छा सेल्फ डिफेंस सिखा दो, पेपर स्प्रे कैरी करो, ये सब किया। ठीक है, आप लोकेशन की सर्विस दे दो माता पिता को, ये सब के बारे में वन बाय वन आई वांट टू डिस्कस। अच्छा, आप एक लड़की को सेल्फ डिफेंस सिखाते हो, अगर एक लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर एक लड़का हुआ या दो लड़के हुए, चलो ठीक है, वो लड़की लड़ झगड़ के वहां से निकल जाएगी। इमेजिन 4 से 5 लड़के हुए, तो अगर गैंग रेप हुआ तो वो लड़की खुद को कैसे बचाएगी? कितना वो किसी भी लड़के से लड़ पाएगी? 4-5 लड़कों से वो अकेले लड़ पाएगी?
इज ऑल आई एम आस्किंग. टेल मी ऑनेस्टली, एक लड़की 4-5 लड़कों से अकेले लड़ पाएगी? साइंटिफिकली स्ट्रेंथ में लड़कियों का स्ट्रेंथ कम होता है. चलो मान भी लिया 1-2 लड़कों को उसने मार गिराया, हो गया, और 3-4 लड़कों का वो क्या करेगी? उसके साथ गलत तो होगा ही, उनको तो और गुस्सा आएगा और उसके साथ गलत होगा. मूविंग ऑन, पेपर स्प्रे. एक लड़का 2 लड़का, सेम थिंग गोज फॉर दिस. पेपर स्प्रे अगर कहीं गिर गया, लड़की कैसे खुद को बचाएगी? अब बताओ मुझे. थर्ड थिंग, लोकेशन सर्विस. अच्छा, तुम्हारे पास लोकेशन सर्विस है, जब तक कोई भी वहां पहुंचे, अगर लड़की के साथ गलत हो चुका होगा, क्या होगा? इस सब में लड़की का बचाव कहाँ है, मुझे बस ये जानना है. किस एंगल से लड़की बच रही है यहाँ पे? तो यहाँ तक आज तक ये प्रिवेंशन निकला ही नहीं है कि किसी भी लड़की को रेप से कैसे बचाया जाए. सिंपल एंड सीधा प्रिवेंशन. जब तक लड़कों के दिमाग में ये नहीं बैठ जाता कि अगर हमने किसी भी लड़की के साथ गलत किया तो हमारे साथ क्या होगा, ये उनके दिमाग में अगर ये नहीं बैठता है, तब तक कुछ नहीं होने वाला. ट्रस्ट मी ऑन दिस. मैं खुद बोल रही हूँ कि जब तक लड़कों के बिहेवियर में चेंजेस नहीं आते. मूविंग ऑन, मुझे जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में बात करना है. एक लड़की को रेप के बाद जस्टिस मिलने में 6 साल लगते हैं. आप ये सुनने के बाद ये बताओ, अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है तो वो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन भी लगाती है, उसको 6 साल लगेंगे रेप की जस्टिस मिलने में? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बिगड़ा हुआ. मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाती है तो वो रेपिस्ट को अपनी साइड की स्टोरी बोलने का फायदा ही क्या है? उस रेप करने के पीछे जस्टिफिकेशन कोई कैसे दे सकता है? उस इंसान ने रेप किया है, कोई छोटी सी चीज नहीं की है. बहुत बार लड़कियां मर जाती हैं, बहुत बार लड़कियां नहीं बचती है, तो उस इंसान का जस्टिफिकेशन लेके हाई कोर्ट करेगा क्या? डायरेक्ट सजा सुनाओ यार, मौत की सजा दो. मौत तो बहुत कम होगी. वो लड़की जिस हालत से गुजरी होगी, जो मेंटल ट्रॉमा से गुजरी होगी, जो उसकी फैमिली मेंटल ट्रॉमा से गुजरी होगी, वो रेपिस्ट इमेजिन भी नहीं कर सकता. ही हैज डन द डीड. जो फेस करना है, फैमिली को फेस करना है. तो जस्टिस देने में इतने साल क्यों लगते हैं? ये सब के वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेप केसेस रजिस्टर भी नहीं होते. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इतने पीछे जा रही है कि एक रेप विक्टिम को जस्टिस मिलने में 6 साल लग रहे हैं. इज ऑल आई एम सेइंग. वी नीड टू स्ट्रेंथन अप द कॉन्स्टिट्यूशन, strengthen up how we fight things, strengthen up the mentality of India is all I am saying. Moving forward, the most important thing about everything here is the society. हमारी जो सोसाइटी विशेष टिप्पणियां देती है जब लड़की का रेप हो जाता है, उसको बोला जाता है जरूर लड़की ने छोटे कपड़े पहने होंगे तभी तो लड़के ने रेप किया होगा. हाँ भाई, हम छोटे कपड़े पहनते बोलते आओ भैया हमारा रेप कर दो. यही है ना, यही आप बोलने की कोशिश कर रहे हो. लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो हाँ जरूर इसका रेप होना चाहिए. छोटे कपड़े पहन के कैसे निकल सकती है? तो कृपया ये सोसाइटी हमें बताए कि हमें कैसे ड्रेस करना चाहिए. एक लड़की का बलात्कार कुर्ते पजामे में भी होता है, जीन्स पैंट में भी होता है, सब कुछ में होता है. कृपया हमें ये बता दे कि साड़ी में रेप नहीं होगी. साड़ी में भी होती है. मुझे ये बता दे कि हम कैसे ड्रेस करके निकले. सेकंड चीज, लड़की रात में निकली है. हाय राम, रात के 2 बजे लड़की निकल के बाहर जा रही है. हाँ, आपका लड़का तो 3-3 बजे भी घूम सकता है, आपका लड़का तो रेप कर सकता है लड़की का, उसमें क्या गलत बात है? लड़की 2 बजे निकल गई, लड़की कैसे 2 बजे निकल सकती है? लड़की का हक ही नहीं है 2 बजे निकलने का. अगर 2 बजे रात में निकलेगी तो उसके साथ रेप होना ही होना है. ये कैसी सोसाइटी में हम रहते हैं यार, जहाँ पे एक औरत को देवी का मान दिया जाता है और उसी औरत को ऐसे ब्लेम किया जाता है, और वो भी रेप के बाद. मुझे ये नहीं समझ में आता है हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी इतनी छोटी कैसे हो सकती है. इज ऑल आई एम आस्किंग.
एक सोसाइटी में जब कोई लड़की रहती है उसको सेफ फील करना चाहिए कि चलो आई एम लिविंग इन अ प्रोटेक्टेड सोसाइटी। यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है, एक लड़की का रेप होता है, लड़की को ब्लेम किया जाता है। चलो अंकल रात में भी निकल गए, छोटे कपड़े भी नहीं पहने हैं, सुबह में निकले हैं और पूरे कपड़े पहने, तब क्यों मेरा रेप हो रहा है? तब कहाँ हमारे कपड़ों के सेंस से हम ऐसे बुला रहे भैया भैया हमारा रेप कर दो, हम तो यहीं पे ऐसे ही खड़े हैं। अगर लड़की ज़्यादा इंडिपेंडेंट है तो उसका रेप हो जा रहा है, अभी लड़की ज़्यादा एजुकेटेड है तो उसका रेप हो जा रहा है। बस मुझे ये बोलना है, जब तक इन अंकल आंटियों का विशेष टिप्पणी चलते रहेगा तब तक रेप्स होंगे। और आप देखना आधा से ज़्यादा इन अंकल आंटियों के बच्चे ही होते जो रेप करते हैं। मैं एक सर्वे देख रही थी यूट्यूब पे जिसपे एक अंकल ने बोला लड़कियों को इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इतना ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, छोटे कपड़े पहन के नहीं निकलना चाहिए, रात के 2 बजे नहीं निकलना चाहिए, रात के 8 बजे के अंदर घर पे वापस होना चाहिए। क्यों? आपका बेटा घूम सकता है, आपका बेटा बिना शर्ट के घूम सकता है, आपका बेटा रात के 4 बजे घूम सकता है, लेकिन लड़कियां नहीं घूम सकती। ऐसा क्यों भाई? आपके बेटे को सारा फ्रीडम मिला हुआ है, हम लड़कियों को क्यों नहीं फ्रीडम मिला हुआ है? इज ऑल आई वांट टू आस्क। उन अंकल आंटियों को ये विशेष टिप्पणी देने से मैं रोकना चाहती हूँ, क्योंकि अगर अगली बार से आपने मेरे सामने एटलीस्ट अगर ऐसी विशेष टिप्पणियां दी तो मुझसे बुरा तो कोई नहीं होगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ऐसे लोग बोलते हैं कि अरे उसने तो छोटे कपड़े पहने होंगे इसीलिए उसके साथ रेप हुआ है। हाँ अंकल आपके के बेटे ने किया होगा, हद है यार। यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हुए मेरी ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है उन आंटियों से, उन बेटों की मम्मियों से कि प्लीज़ अपने बेटे को ये बुद्धि दे कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करे इंस्टेड ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग देम, और उनका रेप करने से पहले 1000 बार सोच ले कि उनके भी घर पे माँ बहन बेटी होती है। मेरी यही रिक्वेस्ट है। और उन माओं से मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बेटे को थप्पड़ लगा के बोले कि प्लीज़ अपनी बहन माँ की जैसे रिस्पेक्ट करते हो सारी लड़कियों की भी रिस्पेक्ट करें और उनके गलतियों पे पर्दा डालना बंद कर। दिस इज अनदर ह्यूज रिक्वेस्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब तक आप सज़ा कड़ी नहीं कर देते हो तब तक इंडिया में रेप्स होती रहेंगी। इफ द पनिशमेंट इज नॉट एज सिवियर एज द रेपिस्ट को कहाँ से फील हो गया कि हाँ हमने कुछ किया है? इज्जत लड़की की जाती है, रेपिस्ट की नहीं। रेप होने के बाद सारी दुनिया लड़की को ब्लेम करती है, रेपिस्ट को नहीं, ये याद रखें। तो आई रिक्वेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मेक अ चेंज। I am a very small part in a samandar of bad things happening, but I really hope मेरी ये वीडियो से किसी को ये सीख मिले to get educated, to give education and to prevent things from happening. I hope थोड़ा तो चेंज लाए। आई नो मेरे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे बोलने से कुछ चेंज नहीं होने वाला, लेकिन अगर कोई सुनता है, मेरे बोलने से इफ़ेक्ट पड़ता है, तो प्लीज़ उसको इफ़ेक्ट में लाए। माई चैनल इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। आई कैन नॉट बी फ़नी, मेरे अंदर वो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है कि मैं फ़नी वीडियोज़ बनाऊँ, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं लड़ सकती हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं बोल सकती हूँ, आई विल डेफिनेटली स्टैंड अप फॉर इट। मुझे इंस्टेड घर से बहुत लोगों ने बोला कि नहीं ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, तुझे इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होगी। मुझे बोला गया, आई सेड कि नहीं, आई विल स्टैंड बाय द ट्रूथ, आई विल स्टैंड बाय व्हाट इज़ राइट एंड आई एम स्टैंडिंग बाय इट। चाहे मुझे बैकलैश मिले या कुछ भी हो, आई डोंट केयर। जो सच है वो सच है। और जिसको और बहुत कुछ जानना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और जिसको विशेष अपनी टिप्पणियाँ देनी है मेरे वीडियो के अगेंस्ट जाके वो भी कमेंट कर दे। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू दोज एज वेल। और अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही मैं लड़ूँ ऐसे वीडियोस पे खुद से अकेले से और थोड़ा देश में बदलाव लाऊं।
और ऐसे ही मुझे मोटिवेशन मिलते रहे कुछ अच्छा करने का, कुछ आगे जाके बढ़ के कुछ अलग करने का, किसी की मदद करने का. दिल बी अ ग्रेट सपोर्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बिना भूले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना. धन्यवाद. Adios amigos. Shining off. Anushka. Bye bye. And one more thing. Stay safe. कोरोना से दूर रहो, मास्क पहनो, वैक्सीनेशंस ले लो. अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, थर्ड वेव आने की आशंका है. अगर थर्ड वेव नहीं जाते हो, कॉलेजेस जाना चाहते हो, स्कूल्स रीओपन करना चाहते हो और ऑफिसेस जाना चाहते हो और बाहर टूर्स पे जाना चाहते हो, तो कृपया मास्क पहनो, वैक्सीनेशन लो और अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलो. सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके रखो. अगर आप ये सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करते हो तो कोरोना टाटा बाय बाय होगा, वरना नहीं होगा. चलो अभी चलते हैं. शुभ रात्रि. यहाँ रात है तो शुभ रात्रि. और adios amigos. Tata. Bye bye. Take care. Stay safe.